Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is exercise numerical number 17. Pay attention. A long charge cylinder of a linear charge density lambda. So you have a very long cylinder. As it is very long, we don't need to define the length, and we are showing a very small part of this cylinder. So we have a very long cylinder having uniformly charge distributed, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. So it is a surrounded by hollow coaxial cylinder. रेडी? सो कोएक्सियल मतलब दोनों की एक्सिस सेम है. ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो है एक्सिस जो कि दोनों की सेम है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन टू सिलेंडर्स? ये दो सिलेंडर के बीच का जो एरिया है वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सो इन दिस केस वी नीड टू फाइंड वी नीड टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस. सपोज कि मुझे अगर यहाँ पे फाइंड करना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा. रेडी? एंड आई हैव द एल लेंथ गॉसियन सरफेस. ठीक है? एंड द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस is R. I hope you can see the Gaussian surface. Ready? Okay. So this Gaussian surface has two type of this Gaussian surface has a three type of surface. This is the surface number 1. This is the surface number 2 and the cylindrical surface number 3. Ready? So I need to find flux of all these three surfaces. So first flux for surface number 1. तो उसका फ्लक्स सपोज है φ1, फॉर्मूला होगा E A cos थीटा. रेडी? अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस है तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? ऐसे आउटवर्ड. सो ये पहला जो सरफेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, और ये जो पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस है उसका एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे. सो इन दिस केस एंगल बिटवीन E एंड A इज 90 डिग्री. So here flux φ1 is equal to E A cos 90 and cos 90 is 0. So first flux is 0. Same like that if we find the flux of second surface. So यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा और एरिया वेक्टर ये होगा, तो एंगल बिटवीन E and A is 90. So E A cos 90. So flux φ2 is equal to 0. Now the flux for this third curved surface. For this flux φ3 is equal to E A cos 0, because इसका जो एरिया वेक्टर है कर्व सरफेस का वो होगा ऐसे आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है. सो cos 0 is 1. सो फ्लक्स φ3 is equal to E A, और यहाँ पे एरिया कितना होगा कर्व सरफेस का? 2 pi r l. सो दिस इज द फ्लक्स ऑफ द थर्ड सरफेस. सो टोटल फ्लक्स phi is equal to φ1 plus φ2 plus φ3. So flux phi is equal to 0 plus 0 plus 2 pi r l.
So total flux 2 pi r into E. So total flux is equal to E into 2 pi r L. But we also know that flux phi is equal to Q by epsilon 0. Flux phi is equal to Q by epsilon 0. So equate these two formula. This is the formula of chapter number 1, theory based formula. Ready? अब इन दोनों को इक्वेट करो. So E into 2 pi RL is equal to Q by epsilon 0. And here in the question that is given, the linear charge density is lambda. So we can write lambda is equal to Q by L. So Q is equal to lambda into L. ये हमारा फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1 थियरी पोर्शन. ये Q की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे. सो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q की जगह डाल दो लैम्बडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन 0. दिस एल कैंसल्स. सो वी हैव E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0. दिस इज द फाइनल आंसर. रेडी? सो now next let's move towards sum number 18. Pay attention. In a hydrogen atom, the electron and proton are bound at a distance of about 0.53 angstrom. This is the electron and this is the proton, and the distance between them is 0.53 angstrom. Ready? Okay. Estimate the potential energy of the system in EV. मुझे ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R ओनली. रेडी? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R. और ये हमें EV में फाइंड करना है. वो मैं सिखा दूंगा कि EV क्या है और कैसे फाइंड करते हैं. आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन. मतलब यहां पे हमें ऐसा बोला है कि कंसीडर जीरो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. और ये जनरल है. 99% हमारे न्यूमेरिकल में जीरो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही कंसीडर करते हैं. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना U, उसके लिए देखो क्या होगा कि एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 बाय R. कोई भी टाइप की जब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं ना, तो एक तो वो दोनों सिस्टम में जो दो हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट जीरो पोटेंशियल, रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होती है और वो दिया है हमें इनफाइनाइट पे. तो इनफाइनाइट पे हमारी इनफाइनाइट वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये केस में, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो यहाँ पे माइनस ये वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा. सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इवेंचुअली कितनी रही? यही 99% न्यूमेरिकल्स में यही होता है. जो भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला है वहां पे अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं दिया कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, तो डायरेक्टली समझ लेना कि इनफाइनाइट पे ही है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी. तो मतलब आवर पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी, और रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. तो ये माइनस वाला टर्म ऑलवेज जीरो ही होगा. अगर इसके अलावा कुछ और लेना होगा
अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फाइनाइट की जगह अगर कुछ और लेने के लिए बोला होगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, चलो। सो हमारे केस में हमें बेसिकली फाइंड करना है ये, मतलब कि ये फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। सो u इज इक्वल टू के की जगह डाल देंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। हमें वैल्यू लिखनी है, माइनस नहीं लिखना है। Q2, ओ सॉरी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। यस, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। सो स्केलर क्वांटिटीज में हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम वैल्यू लिखते हैं क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। सो के Q1, Q2 इज अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन की चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय आर, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू जो कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। सो ये तुम जो भी फाइंड करोगे ये तुमको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी जूल में, ऐसा यूनिट्स मतलब जूल में। बट क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन ईवी। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पोटेंशियल एनर्जी को जूल में से ईवी में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू डिवाइड दिस पोटेंशियल एनर्जी बाय 1.6 इंटू 10⁻19। रेडी, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जूल में होगी, लेकिन हमें ईवी में फाइंड करना है। सो जूल को अगर ईवी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करो 1.6 इंटू 10⁻19 से। सो डिवाइड करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो होगी पोटेंशियल एनर्जी इन ईवी, और ये पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी -27.2 ईवी। रेडी, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली ईवी में, इतनी। चलो अब ये क्वेश्चन का हम बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सो पे अटेंशन। ओके, बी पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है मतलब उसका कहने का मीनिंग यह है कि अब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो बाउंडेड है। तो कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वर्क, मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट। अभी जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, और वो कितनी है, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन इन ए में हमने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी उसकी मैग्नीट्यूड का हाफ, मतलब -27.2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, +27.2 उसका हाफ। तो अभी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 13.6 + 13.6 ईवी। सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, इन एडिशन में उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी है। सो फाइंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी आवर इलेक्ट्रॉन हैज। सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस U। सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू K हो गया हमारा 13.6 प्लस U है हमारा -27.2। सो E इज इक्वल टू 13.6 माइनस 27.2, दिस विल गिव यू E इज इक्वल टू -13.6 EV। E क्या हो गया हमारा, -13.6 EV। मतलब राइट नाउ अवर इलेक्ट्रॉन हैज टोटल एनर्जी दिस मच। और मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में ही सिखाया था कि टोटल एनर्जी माइनस में है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव विच indicates that our electron is bounded
बाय एनर्जी -13.6 EV। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन, उसको बाउंडेड में से फ्री करना है। तो जितनी एनर्जी से बाउंडेड है उतनी ही एनर्जी अगर पॉजिटिव देंगे तो फ्री हो जाएगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? +13.6 EV जितना वर्क हमें करना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट बी। रेडी? नाउ पार्ट सी, pay attention. What are the answers to A and B above if the zero potential energy is taken at 1.06 separation? जीरो पोटेंशियल एनर्जी मतलब, तो अब तुम्हें ऐसा बोला है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट की जगह पे है 1.06 एंगस्ट्रॉम में। तो अब हमने जो पार्ट ए कैलकुलेट किया था और पार्ट बी जो कैलकुलेट किया था उसका आंसर क्या होगा? चलो तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सो मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में यह है कि दोनों एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो यहीं पर है, लेकिन हमारा जीरो पॉइंट एनर्जी जो मतलब कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट जो पहले हमें इनफाइनाइट पे बोला था वो अब यहाँ पे है। तो एक्चुअली में तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, कि हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये वाला फॉर्मूला K(Q1 Q2/R) माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस पॉइंट। तो पहले केस में तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, बट अब ये डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है सिर्फ इनफाइनाइट पे। तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो U इज इक्वल टू, चलो देखो डायग्राम, K(Q1 Q2), तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ K(Q1) हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन के लिए है तो माइनस, इंटू क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 0.53 इंटू 10⁻10 माइनस K -1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय, नाउ potential energy at reference point which is at 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें ये लेना पड़ेगा 1.06 इंटू 10⁻10। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी तो हमने ईवी में फाइंड की थी, कितनी थी? -27.2 ईवी में है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 13.585। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचेगा ये। तो मतलब अब हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? तो अभी हमारी टोटल एनर्जी, अच्छा ये जो मैंने आपको बोला ना 13.585 ये ईवी में है, मतलब इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईवी में फाइंड करना है ना। वैसे इसको भी 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे किया था। रेडी? तो अब ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब ये केस की हमारी पोटेंशियल एनर्जी है -13.585 अप्रोक्सीमेटली ईवी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट होगा, ये मैं न्यूमेरिकली ऐसे सॉल्व किया है, थोड़ा इसमें सिर्फ 6 या समथिंग कुछ हो सकता है। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। सो ये हो गया हमारा पार्ट ए का आंसर कि अब ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। तो पार्ट बी का आंसर क्या होगा? सो अब हमारा पार्ट बी का आंसर होगा कि अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे कि E इज इक्वल टू K प्लस U। सो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी हमको मिली थी
ये 13.6 EV। तो देखो E इज इक्वल टू के प्लस यू, सॉरी यहाँ पे देखो, अब हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? तो काइनेटिक एनर्जी थी प्लस 13.6, और अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ये 5 8 को अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख लो, तो -13.6 ये हो गई हमारी अब पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ज़ीरो, यहाँ पे हमारी टोटल एनर्जी ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे वो ऑलरेडी फ्री है। तो फ्री करने के लिए नो वर्क डन, बिकॉज राइट नाउ इट इज ऑलरेडी फ्री। ठीक है, सो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस रेफरेंस पॉइंट 1.06 दिया है, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी ये थी। काइनेटिक एनर्जी तो हमने प्रीवियसली फाइंड की ही थी, तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई, और टोटल एनर्जी फाइंड करके देखा तो वो ज़ीरो थी, मतलब ये ऑलरेडी फ्री है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। राइट, चलो, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 19। If one of the two electrons of H2 molecule is removed, ठीक है, H2 molecule का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो H2 में टोटल 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो बचे क्या? 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इतना ही बचा। So now we have a hydrogen molecule ion H2 plus. In the ground state of this H2 plus, the two protons are separated by roughly 1.5 angstrom. So two protons are separated by 1.5 angstrom. And the electron is roughly 1 angstrom from each proton. इलेक्ट्रॉन जो है वो हार्डली 1 एंगस्ट्रॉम दूर है प्रोटॉन से। डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, स्पेसिफाई योर चॉइस ऑफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो, मतलब कि आपको जीरो पोटेंशियल कहाँ लेना है वो आपको चॉइस करना है। तो ऑब्वियसली हम तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे, हमारा जो मोस्ट कॉमन कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू दैट। चलो, सो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पूरे सिस्टम की। तो आपको याद हो तो पता है, मैंने नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला सिखाया था थियोरी सेक्शन में, n×n-1/2, मतलब कितने चार्ज है? 1 2 3, वी हैव 3 चार्जेस, सो n की जगह 3 रख दो, 3 × 3 - 1 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। आंसर क्या आया? 3, मतलब हमारी टोटल 3 पेयर बनेगी। चलो, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R प्लस K, अब इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2/R। आगे सारे पैर, ये पैर आ गई, ये पैर आ गई और ये पैर आ गई, सारी पैर आ गई, 3 पैर हो गई। चलो, सो लेट्स फाइंड इट। यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं K + E। ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही कॉमन निकल सकता है। चलो हम वैल्यू डाल देते हैं तो इजी रहेगा। देखो,
के ई स्क्वायर बाय 1.5 इंटू 10⁻10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाय 1 इंटू 10⁻10 सेम हियर माइनस के ई स्क्वायर बाय 1 इंटू 10⁻10. So u is equal to के ई स्क्वायर बाय 10⁻10 अगर कॉमन निकाल दो तो 1 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 1/1 माइनस 1/1. रेडी? चलो, सो u इज इक्वल टू के की जगह डाल दो 9 इंटू 10⁻9 एंड ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर बाय 10⁻10. सो 1/1.5 ये हो गया -1 है ना, तो ये टोटल हो जाएगा -2. सो u इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा -10 तो 9 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर 1/1.5 मतलब 15/10 -2. रेडी? सो u इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 होल स्क्वायर 10 - 30/15. रेडी? सो अब ये हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी इन जूल और ईवी, बट टेक्स्ट बुक में जो है इसका आंसर ईवी में दिया है. तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा जूल, बट हमें तो ईवी में फाइंड करना है. सो ईवी में फाइंड करना है तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया वी हैव टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19. इससे डिवाइड करना पड़ेगा. सो इससे डिवाइड करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 ये और ये कैंसिल हो गया. तो u इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 10 - 30 होता है -20/15. और इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू -19.2 EV. Ready? So this is the potential energy of our whole system. Ready? चलो, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है काफ़ी लंबा है ना, सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. हमारे एक्सरसाइज में टोटल न्यूमेरिकल्स है 37. ओहो, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं. अभी तो हम 19 पे ही पहुँचे हैं, बट पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे हैं. सो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर देखने जाओ तो 37 और हमारे 19 तो 18 जितने न्यूमेरिकल्स बाकी हैं. तो 5-1 दिन में टारगेट है कि कंप्लीट हो जाए हमारा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मैसेज मी इन द मैसेज सेक्शन. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.